Read the following. The growing preference of indigenous craft items is a welcome trend in today's globalized world where mass-produced goods often dominate markets. अब मान लो मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिले और उसमें मैंने अपना पैसेज पढ़ना शुरू कर दिया है. These handcrafted products rooted in the culture and artistic traditions of their regions offer more than just aesthetic appeal. They symbolize sustainability, support local economies, and preserve the heritage of diverse communities. One of the primary reasons for choosing indigenous crafting is their eco-friendliness. Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced materials. Artisans often employ time-tested methods that minimize waste and avoid harmful industrial processes. For example, pottery made from local clay, handwoven textiles using organic dyes, and bamboo-based crafts all have a much lower environmental footprints compared to their machine-made counterparts. By opting for these items, consumers indirectly contribute to reducing pollution and promoting sustainable practices. Supporting indigenous crafts also strengthens local economies. Many artisans depend solely on their craft for livelihood, often working in small communities where opportunities for other forms of employment are limited. When people purchase their products, it provides a direct income to these artisans, empowering them and encouraging their craftsmanship. Initiatives like fair trade further ensure that artisans receive their fair wages, fostering economic stability within their communities. Moreover, indigenous craft items help preserve cultural heritage. Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the traditions, belief, and skills passed down through generations. In India, whether it's paintings, terracotta jewelry, sculptures, Athangudi tiles, mudwork frames, or many others, each item reflects the unique identity of its region. By choosing these crafts, people not only appreciate the artistry but also help keep these traditions alive in an era where cultural homogenization threatens diversity. In addition to their economic and cultural value, indigenous crafts add a personal touch to homes and wardrobes. Like mass production items, which often lack in individuality, handcrafted products are unique. Each piece bears the imprint of the artisan's effort, creativity and dedication, making it special for the buyer. ये सिंपल सा हम लोगों को एक पैसेज दिया हुआ है, लास्ट पैराग्राफ है इसमें. However, the preference of indigenous craft requires sustained efforts to thrive. Governments, organizations, and consumers all have roles to play. Policies that promote local craftsmanship, provide training to artisans, and create global platforms for showcasing their work can boost the visibility and demand for these products. Consumers too much actively seek out the invest in handmade crafts rather than opting for cheaper factory-made alternatives. Choosing indigenous craft item is a meaningful step toward a more sustainable and culturally enriched world. आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? Why is growing preference for indigenous craft items described as a welcome trend in paragraph 1? अब सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले यही बोल दिया कि तुम्हें जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो पैराग्राफ 1 में मिलेगा. इसका मतलब क्या है? मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है. अब मैं पैराग्राफ में क्या ढूंढूंगी? मैं why is growing preference for indigenous craft items डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड, एक वेलकम ट्रेंड की तरह क्यों बोला गया है? चलिए देख लेते हैं हम पैराग्राफ 1 में क्यों बोला गया है एक वेलकम ट्रेंड की तरह. ये है हमारा पैराग्राफ 1 और ये रहा हमारा कीवर्ड. जब भी हमें अपना अनसीन पैसेज जो पढ़ते हैं हम लोग और वहां से हमें क्वेश्चन के आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला तरीका यही होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन के अंदर जो भी कीवर्ड्स या की फ्रेजेस है उनको ही हम पैसेज में ढूंढें. कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं. जैसे अभी वेलकम ट्रेंड हमें दिखा तो हम इसे पैसेज में ढूंढेंगे. ऐसा मैं क्यों कहती हूं आपको करने के लिए? क्योंकि जब हमारे दिमाग में एक चीज फिक्स होती है कि मुझे ये ढूंढना है तो दिमाग पूरी शिद्दत से उसी चीज को ढूंढता है, राइट? तो यहां पर भी यही होगा. द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजिनियस क्राफ्ट आइटम्स इज अ वेलकम ट्रेंड इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफन डोमिनेट मार्केट्स. देखिए क्यों? दीज हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स रूटेड इन द कल्चर एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस ऑफ देयर रीजन्स ऑफर मोर देन जस्ट एस्थेटिक अपील. पहली चीज, एस्थेटिक अपील से ज्यादा ये हमें देते हैं. दे सिंबलाइज सस्टेनेबिलिटी. ये है हमारा मेन आंसर. अब ये आपका जो वर्ड है ये तो यहां मिल गया बेशक, है ना, बट हमारा जो मेन आंसर है बेटा वो यहां पर है कि ये क्या सिंबलाइज करते हैं? ये सिंबलाइज करते हैं सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज. अब बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि मैम मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से उठा के और यहां तक का एज इट इज चिपका देता हूं. बेटा ये गलती आपको नहीं करनी. तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की तो अनसीन पैसेज के अंदर कभी भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए. चाहे आप इनको ही आगे पीछे ऊपर नीचे कर लिख कर आ रहे हैं, बट आपको लिख के आना है. आपके आंसर में अभी मेन डिमांड क्या है? मेन डिमांड है कि आप लिखो सस्टेनेबिलिटी. ये वर्ड्स है, ये पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है? तो आपने थोड़ा पार्ट क्वेश्चन में से उठाया और फिर ये 3 पॉइंट्स जरूर मेंशन किए, लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज. हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया कि भाई ये सस्टेनेबिलिटी
बताते हैं, सस्टेनेबिलिटी सिंबलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोकल इकोनॉमीज को, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, एंड प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज, और अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग समुदायों की जो हेरिटेज है, ठीक है, जो कल्चर है वो हम संजो कर रख पाते हैं, राइट? बस यही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। तो अब आप जब आंसर लिखोगे ना, तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप थोड़ा सा पार्ट जो है अपने चैप्टर में से अपने क्वेश्चन में से उठा सकते हो, ठीक है? जैसे द ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स डिस्क्राइब्ड एज अ वेलकम ट्रेंड बिकॉज इट हेल्प्स प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सपोर्ट्स लोकल इकोनॉमीज एंड प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज। दैट्स इट। क्वेश्चन में से उठा के थोड़ा सा पार्ट लिखना है आपको, मेन आंसर आपका ये है, ठीक है? आ गया समझ में? क्वेश्चन में से उठाकर थोड़ा सा पार्ट लिखना है और मेन आंसर आपका ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 1, द इंडिजीनियस क्राफ्ट आइटम्स हैव ऑल द फॉलोइंग क्वालिटीज एक्सेप्ट बीइंग हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट, रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, एस्थेटिक इन अपील, इजीली एक्सेसिबल। देखो अब इन चारों में से वो पूछ रहे हैं कौन सी क्वालिटी नहीं बताई गई है। कौन सी नहीं बताई गई थी? हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, रूटेड इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक अपील बताया गया था क्या? चलो देख लेते हैं। Indigenous craft item is a welcome trend in globalized world where mass products good offer dominant market. Handcrafted products है, rooted in cultural artistic tradition, ये भी दिया हुआ है, ठीक है? तो handcrafted भी दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है। Of the region offer more than aesthetic, aesthetic से भी ज्यादा अपील, more than just aesthetic, ऐसा नहीं है कि केवल aesthetic, उससे भी ज्यादा, ठीक है? तो हमारे आंसर जो है वो यहाँ पर क्लियरली क्या हो जाएगा? इजीली एक्सेसिबल कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। ये तीनों पॉइंट्स आपको दिख गए थे, राइट? ये वाला पॉइंट नहीं दिया गया था, इजीली एक्सेसिबल नहीं दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं नंबर 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब पता है क्या हुआ, हमने जब स्टार्टिंग के 15 मिनट्स हमें मिले तो हमें उसमें कभी भी अपना जो अनसीन पैसेज है ना उसको सॉल्व नहीं करना होता है, हमें उसके अंदर सिर्फ अनसीन पैसेज को रीड करना होता है। हमें एक्चुअल में सॉल्व कब करना है? जब हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पेपर के अंदर, ठीक है? हमें गलती यही करते हैं कि हम अनसीन पैसेज को या पेपर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, और ये प्लान करने की जगह मुझे क्या आता है, मुझे क्या पहले करना है, मैंने अनसीन पैसेज भी पढ़ लिया है, वो सब नहीं करते हैं हम। तो वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग एंड यू आर यूजिंग योर 15 मिनट्स बहुत अमेजिंग तरीके से, ठीक है? ओके, आफ्टर दैट द यूजेज ऑफ लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स मेक द इंडिजीनियस क्राफ्ट्स, पैराग्राफ 2 के अंदर दिया है, ट्रेडिशनल बनाते हैं या इको फ्रेंडली बनाते हैं। तो हमें देखना है सोर्स्ड मटेरियल्स, लोकली सोर्स्ड मटेरियल, ये मेरा की फ्रेज है और मुझे इसको फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं हम पैराग्राफ 2 में हमें आंसर मिलता है क्या। देखो मुझे किसी भी चीज के अभी हिंदी विंदी करने की जरूरत पड़ी नहीं कि कोई एक वर्ड ऐसा हो जो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो तो वो मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम दे रहा है आंसर फाइंड आउट करने में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? चलिए, one of the primary reasons for choosing indigenous craft is their eco-friendliness. Unlike factory products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced material. तो यहीं पर मेरा आंसर है, मुझे यही ढूंढना था ना, लोकली सोर्स्ड मटेरियल। क्वेश्चन क्या था मेरा, मैं तुम्हें बोलने के चक्कर में भूल जाती हूँ। द यूजेज ऑफ लोकली सोर्स्ड मटेरियल मेक्स द इंडिजीनियस क्राफ्ट, ट्रेडिशनल बनाते हैं या उसे इको फ्रेंडली बनाते हैं? जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसे ट्रेडिशनल बनाते हैं। अनलाइक फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की तरह नहीं, मोस्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल, कैसे क्रिएट किए जाते हैं? नेचुरल लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स के जरिए, एंड इंडिजिनियस इज देयर इको फ्रेंडलीनेस, प्राइमरी इनका क्या है, इनका इको फ्रेंडलीनेस जो है वो है। तो हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इको फ्रेंडली हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है जहां पर आपको आपका कीवर्ड दिख गया है वहीं पर आपका आंसर है, आपको वो पूरा पैराग्राफ फिर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? पर जब बोला है पैराग्राफ 2 तो केवल पैराग्राफ 2 पढ़ो, स्टार्टिंग से बार बार पढ़ना शुरू मत करो, ठीक है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फ्रॉम A to C given for what the phrase time tested method suggest in paragraph 2। तो अभी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बोला गया है टाइम टेस्टेड मेथड का क्या मतलब है, ठीक है? व्हाट द फ्रेज टाइम टेस्टेड मेथड सजेस्ट, ये मेथड क्या सजेस्ट करता है पैराग्राफ 2 के अंदर। चलो ऑप्शंस पढ़ने बहुत जरूरी है। आर्टिसंस यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशंस। आर्टिसंस यूज outdated practices that are no longer relevant in today's commercial markets, या artisans follow technique that prioritize speed and mass production over craftsmanship। तो चलिए हमारा आंसर जो होगा वो यहीं पर, कौन से पैराग्राफ में बोला था इन्होंने, ये पीपीटी में यही होता है, वहां पे तो आपके सामने पेपर का पैराग्राफ 2 में बोला इन्होंने, ठीक है? दैट इज ट्रू,
सही बताना है कि सही कौन सा है। चल जा भाई, पैराग्राफ 1 2। ठीक है, अब क्या बताया है? Unlike factory-made products, most traditional crafts are created using natural, locally sourced material. Artisans often employ time-tested methods. Time-tested method ही लगाना था। अब क्यों करते हैं, true कौन सा है ये बताना है। That minimize waste and avoid harmful industrial process. पहली चीज क्या होती है, waste को minimize किया जाता है, और दूसरा क्या है, harmful industrial processes को भाई हम बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉटरी मेड फ्रॉम लोकल क्ले, हैंड वोवन टेक्सटाइल्स यूजिंग ऑर्गेनिक डाइज एंड बैम्बू बेस्ड क्राफ्ट्स ऑल हैव अ मच लोअर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं बेटा, कि जो भी चीज कई दशकों तक, मतलब हम कई सालों तक जो है इस यहाँ पर धरती पर रह जाती है, मतलब एक बार कोई एक प्लास्टिक बन गया तो वो फिर 100 साल लग जाएंगे उसको वो होने में। दैट इज इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, कि क्या छाप छोड़ता है वो। सो बाय ऑप्टिंग फॉर दीज आइटम्स कंज्यूमर इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये फायदा ही कर रहा है इन्वायरमेंट को। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, कि आर्टिसंस जो है वो यूज करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स दैट हैव बीन रिफाइंड एंड प्रूवन इफेक्टिव ओवर जनरेशन। जो रिफाइंड है और इफेक्टिव प्रूव हुई है जनरेशन में, क्योंकि आउटडेटेड प्रैक्टिसेस तो वो यूज नहीं कर रहे हैं इन टुडेज कमर्शियल मार्केट्स में, ये नहीं दिया हुआ है। आर्टिसंस फॉलो टेक्निक्स दैट प्रायोरिटाइज स्पीड एंड मास प्रोडक्शन ओवर क्राफ्ट्समैनशिप। बोलो ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शंस। ए फेयर ट्रेड, फेयर वेजेस। जल्दी से बताइए। So yes, complete the analogy by selecting one of the 2 correct options, fair trade, fair wages, पैराग्राफ 3। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आगे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मज़ा आता है इन क्वेश्चंस को करने में, इजी होते हैं, इजीली हमें नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फेयर ट्रेड, फेयर वेजेस पैराग्राफ 3 में किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी या मास प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, वेजेस मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, जो भी उन्हें तनख्वाह मिलती है वो। तो पैराग्राफ 3 पे हम एक बार स्किप कर जाते हैं। वैसे तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 जो है मुझे लग रहा है कि सही जवाब होगा, बट आप लोग भी देख लीजिए। सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स ऑल्सो स्ट्रेंथन्स लोकल इकोनॉमीज। लोकल इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करते हैं। मेनी आर्टिसंस डिपेंड सोनली ऑन देयर क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो केवल और केवल अपनी आर्ट पे ही निर्भर करते हैं, उनका घर उसी से चलता है। ऑफन वर्किंग इन स्मॉल कम्युनिटीज वेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर होम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर लिमिटेड। ठीक है, व्हेन पीपल परचेज देयर प्रोडक्ट्स, और जब लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट इनकम टू दीज आर्टिसंस। तो वो डायरेक्ट इनकम हो जाती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है उनके, है ना। एम्पावरिंग देम एंड एनकरेजिंग देयर क्राफ्ट्समैनशिप। इनिशिएटिव्स लाइक फेयर ट्रेड फर्दर इंश्योर्स दैट आर्टिसंस रिसीव्स फेयर वेजेस, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद देयर कम्युनिटीज। तो क्या होता है, क्या मिलता है इससे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी हो गया एक तरीके से। तो यस, आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सपोर्टिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स considered an effective way to improve the economic conditions of small communities। पैराग्राफ 3 के अंदर कि क्यों सपोर्ट करना इन क्राफ्ट्स को कंसिडर किया जाता है एक इफेक्टिव तरीका टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, पैराग्राफ 3 पे चलते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इनकम इन लोगों को मिलती है, अभी अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था, है ना, कि भाई इन लोगों का पूरा खर्चा जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलता है और इनका पूरा समुदाय इसी से कमाता है। अब जो भी हम खरीदेंगे वो डायरेक्ट पैसा सारा इनको ही जाएगा, जिससे कि ये इकोनॉमिक तरीके से स्ट्रांग हो पाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे। हाँ या ना। हाँ, इंडिजीनियस होता है बेटा, स्थानीय हो गया या मूल निवासी हो गया, उनको हम इंडिजीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिजीनियस क्राफ्ट्स वही हो जाते हैं कि उस जगह की या मूल निवासी, आप जहाँ के भी हो, जैसे राजस्थान के अंदर अलग तरीके की होती है। ठीक है, आप जहाँ जहाँ पर भी जाओगे वहाँ की अलग अलग आर्ट होती है जो फेमस होती है, और आप वहाँ पे जब जाते हो तो अलग अलग चीज़ें भी लेकर आते हो, है ना। तो अलग अलग तरीके की कारीगरी होती है, जैसे लखनवी कढ़ाई हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो फेमस होती है, और वो वहाँ के लोग जो हैं उन्हीं से अपना पैसा कमाते हैं। तो ये हमें आंसर जो है बेसिकली हमारे सामने ही है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो पाते हैं इन सब चीज़ों से। तो हमें हमारा आंसर 3rd के अंदर यहाँ पर ही मिल गया कि व्हेन पीपल परचेज देयर प्रोडक्ट्स इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनकम टू दीज आर्टिसंस, एम्पावरिंग देम एंड एनकरेजिंग देयर क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि इनको डायरेक्ट इनकम मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्पावर होते हैं, ये थोड़ा सशक्त हो पाते हैं। एनकरेज होता है क्राफ्ट्समैनशिप इससे कि भाई उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हम ये काम करेंगे तो हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है ये चलते रहते हैं, ये क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो चलती रहती है, बंद नहीं होती। अगर उससे पैसा ही नहीं आ रहा होगा तो वो चीज़ वो बंद कर देगा, फिर किसी और चीज़ में पैसा कमाने निकलेगा, पेट तो भरना ही है। तो इनिशिएटिव्स कैसे, जैसे फेयर ट्रेड फर्दर इंश्योर दैट आर्टिसंस रिसीव फेयर वेजेस।
ठीक है, अगर हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें फेयर ट्रेड जैसे, जो फर्दर इंश्योर क्या करे कि इनको फेयर वेजेस मिले, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन देयर कम्युनिटी, तो यहाँ पर हमें आंसर में यही चीज लिखनी है। बिकॉज आर्टिसंस इन स्मॉल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन क्राफ्ट्स फॉर इनकम, क्योंकि आर्टिसंस जो है इन कम्युनिटीज के अंदर डिपेंड करते हैं, है ना, इनकी जो आर्ट है ये डिपेंड करती है कंप्लीटली किस चीज के ऊपर, मतलब क्राफ्ट डिपेंड करती है, मैं बोल रही हूँ इन लोगों की जो इनकम है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इनकी क्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। बाइंग देयर प्रोडक्ट्स गिव देम डायरेक्ट अर्निंग्स एंड इकोनॉमिक सपोर्ट, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उनसे डायरेक्टली कुछ खरीदते हैं तो वो उनको सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट अर्निंग होती है उनकी और इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। तो व्हाई इज सपोर्टिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट्स कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज, क्योंकि इनका जो घर है वो इसी से चलता है। तो स्टार्टिंग में अपना क्वेश्चन में से पार्ट उठाना और ये वाला आंसर लगा के आंसर लिखाना, ठीक है। व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5, मेन आइडियाज क्या है पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। चूजिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट्स हेल्प प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, इस तरीके का कुछ मुझे लगता नहीं है बात किया होगा। इंडिजिनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, इंडिजिनियस क्राफ्ट्स प्रमोट यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एनकरेज पीपल टू चूज इंडिजिनियस क्राफ्ट्स ओवर मास प्रोडक्शन गुड्स। तो हमें क्या देखना है, मेन आइडिया बताना है कि क्या है मेन आइडियाज पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के। लेट्स गो टू पैराग्राफ 4 एंड पैराग्राफ 5। जब 4 और 5 पे जाने को बोला तो हम 4 और 5 पे जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करने में मदद करते हैं, फर्स्ट वाला तो हमें ऑप्शन मिल ही गया है हमारे आंसर के तौर पे, यही हमें दिया हुआ था, हमें फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ था प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? Every handcrafted product carries a story, a glimpse into the tradition, belief and skill passed down through generations. See, हर एक जो आर्ट है ना उसके अंदर कोई एक स्टोरी है, कोई एक ट्रेडिशन की झलक है, उनकी मान्यताएं हैं, स्किल्स पास डाउन थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो स्किल्स मिलती है वो हैं। इंडिया के अंदर जैसे टेराकोटा ज्वेलरी, स्कल्पचर्स, टाइल्स, मड वर्क, मैनी अदर्स, ईच आइटम रिफ्लेक्ट यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स रीजन, उसके रीजन की यूनिक आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। By choosing these crafts, people do not appreciate the artistry but also helps keep these traditions alive in the era where cultural homogenization threatens diversity. ये भी टॉपिक हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ वाला और पढ़ लेते हैं। In addition to their economic and cultural value, indigenous crafts add a personal touch to homes and wardrobes. Unlike mass production, अब यहाँ पर लिखा है unlike मास प्रोडक्शन आइटम्स विच ऑफन लैक इंडिविजुअलिटी, तो ऑफन लैक इंडिविजुअलिटी किसके अंदर नहीं होती, मास प्रोडक्शन वाली चीजों के अंदर नहीं होती है, ठीक है। यस, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स आर यूनिक, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स तो यूनिक होते हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई उसमें बोला जा रहा है किन चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स लैक इंडिविजुअलिटी, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इंडिजिनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही। इंडिजिनियस क्राफ्ट प्रमोट यूनिफॉर्मिटी बाय इरेजिंग रीजनल, इरेज थोड़ी ना कर देता है, अच्छा इरेजिंग रीजनल डिफरेंसेस खत्म कर देता है, हाँ रीजनल डिफरेंसेस खत्म कर देता है, ठीक है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन एनकरेजेस पीपल टू चूज इंडिजीनियस क्राफ्ट्स ओवर मास प्रोड्यूस्ड गुड्स। अब आगे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है कि मेन आइडिया हमें बताना है क्या है, ए बी सी डी। मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 सेकंड है और मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 5 फोर्थ है, तो मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 सेकंड है क्या? नहीं है ना। मेन आइडिया पैराग्राफ 4 का ऑप्शन नंबर 1 है, मुझे लगता है कि चूजिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट्स हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, है ना, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में वो मदद करता है। तो अगर हम देखें ऑप्शन 1 किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 4 ऑप्शन नंबर 1 केवल सी में दिया हुआ है और मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ 5 क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन क्या दिया है, इंडिजिनियस क्राफ्ट्स रिफ्लेक्ट द आर्टिसंस क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड थर्ड। मेन आइडिया क्या है, इंडिजिनियस क्राफ्ट्स को हमें चूज करना चाहिए क्योंकि वो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। मेन आइडिया पैराग्राफ 5 का आपको पता चल गया। चलिए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल अलोंगसाइड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सस्टेनिंग इंडिजिनियस क्राफ्ट्स। कह रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर कंज्यूमर्स टू टेक एन एक्टिव रोल। कंज्यूमर्स का एक बहुत एक्टिव रोल होना चाहिए सरकार के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ, कि भाई वो क्या करे, वो इन सस्टेनिंग इंडिजीनियस क्राफ्ट, कि भाई ये जिंदा रह पाए, ये सर्वाइव कर पाए, ये क्राफ्ट्स है ना, जब लोग खरीदेंगे तभी तो इनको आगे बढ़ पाएंगे। तो पैराग्राफ 6 के अंदर बताना है हमें, बिकॉज कंज्यूमर सपोर्ट इंक्रीज डिमांड फॉर हैंडमेड आइटम्स। अभी क्यों? क्योंकि कंज्यूमर सपोर्ट जो होगा उसी से हैंडक्राफ्ट आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, हेल्पिंग आर्टिसंस, जिससे उन आर्टिसंस की हेल्प होगी। इट ऑल्सो एनकरेजेस सस्टेनेबल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये 6 वाले पैराग्राफ में दिया हुआ था, आपका आंसर यहाँ पर मिल गया।